ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں آٹے کا بحران سنگین ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے، جبکہ سرکاری نرخ پر سختی کے باعث مارکیٹ سے گندم غائب ہو چکی ہے۔ اس پر ہمارے نمائندہ کی رپورٹ دیکھیے۔ بھاولپور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 4,700 روپے فی من جبکہ چکی آٹا 5,600 روپے فی من تک پہنچ گیا۔ سرکاری نرخ پر سختی کے باعث مارکیٹ سے گندم غائب ہو گئی۔ شہری 140 روپے فی کلو آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندم کی پسائی 240 روپے ہے۔ خود گندم خرید کر بھی آٹا پسوائیں تو بھی 4,900 روپے فی من پڑتا ہے۔ 140 روپے آٹے کا ریٹ چل رہا ہے، گندم مل رہی ہے 4600 4700 مل رہی ہے۔ جب گندم کی پابندی کا یہ کتنے گندم ملنا بھی مشکل ہو گئی ہے، بہت سارے آٹا 140 روپے چل رہا ہے۔ بہاولپور میں آٹے کی بہت قلت ہو رہی ہے گندم کی۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں 2 روز کے دوران چکی کا آٹا 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ چکی آٹے کی قیمت میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ کہتے ہیں مہنگائی کے باعث آٹا بھی پہنچ سے باہر ہے، اب بچوں کو کیا کھلائیں؟ اور اتنا مہنگائی ہو رہی ہے جس کی امتحان ہی ہے۔ 140 روپے کلو آٹا بیچ رہا ہے، 130 سے 140 روپے بیچ رہے ہیں دکاندار۔ ہم لینے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آٹا ہے نہیں، پیچھے آٹا مہنگا ہو گیا، اس لیے چکے والے بیچ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں پیچھے گندم مہنگی ہے، ہمیں مل نہیں رہی، گندم ملے گی تو ہم دیں گے۔ گندم آپ چکی والے بیچنا انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آگے شاپ پر لے کر آتے ہیں، ساروں کہتے ہیں بھائی ہم اتنا مہنگا لے کر ہم کیسے بیچیں۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس بنیادی مسئلے پر ریلیف فراہم کر پائے گی یا مہنگائی کا یہ طوفان یوں ہی عوام کو رونتا رہے گا؟ شہر اولیا میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام۔ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس غیر فعال، شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ آج بھی سب سے سستی سبزی آلو ہے، جس کا سرکاری ریٹ 18 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 45 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اس پر ہمارے نمائندہ سلمان ضمیر کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو ریورس گیئر نہ لگ سکا۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق۔ آج سب سے سستی سبزی آلو ہے، جس کا سرکاری ریٹ 18 روپے مقرر، مارکیٹ میں 45 روپے فی کلو ہے۔ شہر میں سوہانجنا 400 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ سرکاری نرخوں میں ادرک 265، لہسن 410 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں ادرک 370، لہسن 500 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں پالک 30، پیاز 34 اور ٹماٹر 64 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں پالک 45، پیاز 70 اور ٹماٹر 80 روپے فی کلو دستیاب۔ سرکاری نرخ نامے میں شملہ مرچ 90، پھول گوبھی اور گاجر 30 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں شملہ مرچ 150، پھول گوبھی اور گاجر 60 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پھل بھی عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ سرکاری نرخوں میں انار 520، پپیتا 270، چیکو 280 اور گنڈیری 64 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں انار 650، پپیتا اور چیکو 350 اور گنڈیری 100 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری نرخ نامے میں امرود 150، سیب 332، فروٹر 90 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں امرود 200، سیب 450، فروٹر 120 روپے فی کلو دستیاب۔ مارکیٹ میں کنو کا ریٹ 140 روپے فی کلو اور کیلے 150 روپے فی درجن ہیں۔ ضلعی انتظامیہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کرے تاکہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ حالیہ سیلاب نے تمام ریکارڈ توڑے۔ لیاقت پور میں سابق وفاقی وزیر مخدوم احمد عالم انور کی میڈیا سے گفتگو، کہا آنے والے وقت میں سیلاب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، سرکاری منچن بند کو مضبوط کیا جانا چاہیے، منچن بند کمزور ہے، حکومت پتھر ڈال کر اس پر کام کرے، آنے والے وقت میں منچن بند پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، حالیہ سیلاب نے تمام ریکارڈ توڑے۔ لیاقت پور میں سابق وفاقی وزیر مخدوم احمد عالم انور کی میڈیا سے گفتگو، کہا آنے والے وقت میں سیلاب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، سرکاری منچن بند کو مضبوط کیا جانا چاہیے، منچن بند کمزور ہے، حکومت پتھر ڈال کر اس پر کام کرے، آنے والے وقت میں منچن بند پر پریشر پڑے گا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان کی بیشتر سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ خستہ حال سڑکوں پر سفر کرنا شہریوں کا مقدر بن گیا۔ بارش کے دوران بعد بھی سڑکوں پر پانی موجود رہتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان کی بیشتر سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں ہماری نمائندہ سہیرہ طارق سے۔ جی سہیرہ، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ بالکل، بارش ہوئے ملتان شہر میں جو ہیں وہ 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد بھی سڑکوں پر ابھی تک پانی جو ہے وہ جوں کا توں موجود ہے۔ ملتان شہر کی جو سڑکیں ہیں انتہائی خستہ حال ہیں۔ اس وقت میں
मौजूद हूँ 40 फुटी रोड पर, और ये ऐसी रोड है जो कि इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है, लेकिन इसकी सूरत हाल ये है कि ये तवील सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गड्ढे पड़ चुके हैं और पत्थर इस सड़क पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसका कहीं पर बहाव नहीं है, निकासी आब का सिस्टम नहीं है, और सड़क पर जो है वो 2 दिन गुजर जाने के बाद भी बारिश का पानी जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको कैमरामैन जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह से रोड की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक शहरी भी हैं जी, आगा के सड़क पर पानी जो है वो मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? और बारिश तो हुए 2 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रोड काफ़ी खस्ता हाल है। ये काफ़ी अरसे से मसला आ रहा है। इस रोड पे तकरीबन मुख्तलिफ जगह पे गड्ढे भी पड़ चुके हैं, जिससे शहरी तंग हुए हैं, गड्ढे के अंदर भी गिर चुके हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं कर रहा है। ये एक रोड बनाया, अब 2 वे रोड इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इस रोड पे भी मुख्तलिफ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे मोटरसाइकिल कभी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत की देखो कोई भी, ये 2 MNA के रोड हैं, गिलानी कहते हैं कि ये डोगर का रोड है। जी, यहाँ पर जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। एक और भी यहाँ पर जो गुजर रहे थे उनसे हम बात करेंगे। बताइएगा कि आपका भी अक्सर इस सड़क से गुजर होता होगा और बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ख़तरनाक जगह है, इधर पानी होता है बहुत, और उसके अलावा हादसात भी होते हैं बहुत, और क्या कहते हैं, बंदा बुजुर्गों के लिए भी कुछ ये सड़क बनाए, यहाँ पे भी हादसात होते हैं, इसलिए शुक्रिया। जी, आप देख सकते हैं कि रोड जो है काफ़ी दूर तक यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं, और जो यहाँ से लोग गुजरते हैं उनके लिए शदीद परेशानी का बाइस है। और शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, इर्द गिर्द दुकानें हैं, ताजिर हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और रोड से पैदल गुजरना जो है वो तो बिल्कुल ही माहौल हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह करी थी। अभी आपको बताएं कि तरंडा मोहम्मद पनाह में NHA हुकाम की मुबैना नाअहली कौमी शाहराह मौत का रास्ता बन गई है। गैर कानूनी यूटर्न्स की भरमार है। NHA हुकाम और मोटरवे पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। जगह जगह यूटर्न्स के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया। शहरी अपनी जानें गंवाने लगे हैं। गुलाम अली की रिपोर्ट देखिए। तरंडा मोहम्मद पनाह में कौमी शाहराह पर गैर कानूनी यूटर्न शहरियों के लिए जानलेवा साबित होने लगे। मोटरवे बीट 22 की हदूद में जगह जगह बनाए गए 200 से ज्यादा छोटे बड़े यूटर्न्स हादसात को दावत दे रहे हैं। शहरियों का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि इन गैर कानूनी यूटर्न्स के बायस तेज रफ्तार गाड़ियां अचानक मुड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, जिससे आए रोज खतरनाक ट्रैफिक हादसात रूनुमा हो रहे हैं। कौमी शाहराह से इंदे उत्ते छोटे छोटे कट बड़े पेन ते रोज बाल स्कूल वेंदन, रोज एक्सीडेंट थी वेंदन। शहरी मजीद कहते हैं कि ये सड़क अब मौत का रास्ता बन चुकी है। हर यू टर्न पर हादसे का खतरा होता है। रोज किसी न किसी की जान जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पेट्रोल पंप और कमर्शियल मार्केटों के मालिकान ने गैर कानूनी यू टर्न कायम किए हैं, लेकिन NHA और मोटरवे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये कट बड़े खड़े सही ते आया रोज नवे हादसे तीन दिन तो मोटरसाइकिल वाले गाड़ियां मेन रोड है। शहरियों ने NHA और मोटरवे पुलिस के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर कौमी शाहराह पर कायम गैर कानूनी यूटर्न्स बंद करवाने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। फतेहपुर इंतजामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक MM रोड और करोड़ रोड पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कर दी गईं। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स की बहाली से चोरी और डकैती की वारदातों में कमी होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताज चौक फतेहपुर में, जहां पर शहर जो तारीकियों में डूब चुका था, और रोही टीवी ने बार बार इसको हाईलाइट किया और जिली इंतजामिया ने इस पर एक्शन लेते हुए MM रोड और करोड़ रोड पर स्ट्रीट लाइट जो है वो नस्ब कर दी हैं। शहर जगमगा उठा है और चोरी और डकैती की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिली इंतजामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे शहर के अंदर खूबसूरती में इजाफा किया है, स्ट्रीट लाइट नस्ब की हैं। और हमारी जिली इंतजामिया से एक और रिक्वेस्ट भी है कि हमारे फतेहपुर के अंदर चौक के अंदर कैमरे भी नस्ब किए जाएं, ताकि चोरी डकैती से बचा जा सके। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि जिली इंतजामिया का ये बहुत अच्छा इकदाम है, और स्ट्रीट लाइट लगने की वजह से शहर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इन्होंने एक और भी जो है जिली इंतजामिया से
रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे भी चौक के अंदर नस्ब किए जाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर रजिस्ट्री ब्रांच की लॉगिन आईडीज का पुराना निजाम खत्म। कमिश्नर के हुक्म पर पीआईटीबी ने आईडीज के गलत इस्तेमाल की रोकथाम बारे मरबूत निजाम नाफिज कर दिया। अब लॉगिन सिर्फ मुतल्लिका दफ्तर और मुकर्ररा जोग्राफियाई हदूद में इस्तेमाल करेगा। गैर मजाज और दूसरे शहरों में लॉगिन का इस्तेमाल गैर मौसर हो जाएगा। कमिश्नर ने रजिस्ट्री ब्रांच दौरे के दौरान लॉगिन आईडीज के गलत गैर कानूनी इस्तेमाल को पकड़ा था। रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल के पहले ही एंटी करप्शन में ज़ेरे समात है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर रजिस्ट्री ब्रांच की लॉगिन आईडीज का पुराना निजाम खत्म कर दिया गया। कमिश्नर के हुक्म पर पीआईटीबी ने आईडीज के गलत इस्तेमाल की रोकथाम बारे मरबूत निजाम नाफिज कर दिया। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन का एसी मोहम्मद नवीद हैदर के हमरा ओश शरीफ का दौरा। कमिश्नर मुसर्रत जबीन ने ओश शरीफ में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मुआयना किया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर की मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की और मयार बरकरार रखने की हिदायत। आपको बताएं, गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। बारात के साथ जाने वाली 3 गाड़ियां सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जख्मी। पंजाब हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। बारात विहाड़ी से गढ़ा मोड़ आ रही थी। आपको बताएं, गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। बारात के साथ जाने वाली 3 गाड़ियां सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जख्मी। पंजाब हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। बारात विहाड़ी से गढ़ा मोड़ आ रही थी। आपको अपडेट करें, गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। बारात के साथ जाने वाली 3 गाड़ियां सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरगोदा में मॉल्स और कमर्शियल प्लाजा जात का फायर सेफ्टी ऑडिट जारी। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरगोदा में मॉल्स और कमर्शियल प्लाजा जात का फायर सेफ्टी ऑडिट जारी है। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली का डिप्टी कमिश्नर के हमरा मॉल ऑफ सरगोदा का अचानक दौरा। शॉपिंग मॉल में फायर सेफ्टी आलात, एमरजेंसी एग्जिट्स और फायर अलार्म सिस्टम का तफसीली मुआयना किया। रेस्क्यू 1112 की टीम फायर सेफ्टी ऑडिट के अमल में मुतहरिक इंतजामात पर ब्रीफिंग। कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि फायर सेफ्टी में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर कमर्शियल और अवामी इमारात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। कभी आपको बताएं कि मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डॉक्टर खुरम अफजल चंद की रिहाइशगाह आमद। यूसुफ रजा गिलानी ने बानी फार्मेसी डिपार्टमेंट BZU की वफात पर फातह खानी की। पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली सैयद अली हैदर गिलानी भी हमरा थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने डॉक्टर अफजल चंद की वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने डॉक्टर अफजल चंद की तालीमाती खिदमात को भी सराहा। यूसुफ रजा गिलानी की डॉक्टर अफजल चंद के नाम से सड़क भी मंसूब करने की यकीन दहानी। फतेहपुर इंतजामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक MM रोड और करोड़ रोड पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कर दी गईं। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स की बहाली से चोरी और डकैती की वारदातों में कमी होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताज चौक फतेहपुर में, जहां पर शहर जो तारीकियों में डूब चुका था और रोही टीवी ने बार बार इसको हाईलाइट किया और जिली इंतजामिया ने इस पर एक्शन लेते हुए MM रोड और करोड़ रोड पर स्ट्रीट लाइट जो है वो नस्ब कर दी हैं। शहर जगमगा उठा है और चोरी और डकैती की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिली इंतजामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे शहर के अंदर खूबसूरती में इजाफा किया है, स्ट्रीट लाइट नस्ब की हैं। और हमारी जिली इंतजामिया से एक और रिक्वेस्ट भी है कि हमारे फतेहपुर के अंदर चौक के अंदर कैमरे भी नस्ब किए जाएं ताकि चोरी डकैती से बचा जा सके। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि जिली इंतजामिया का ये बहुत अच्छा इकदाम है और स्ट्रीट लाइट लगने की वजह से शहर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इन्होंने एक और भी जो है जिली इंतजामिया से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर जो है CCTV कैमरे भी चौक के अंदर नस्ब किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर रजिस्ट्री ब्रांच की लॉगिन आईडीज का पुराना निजाम खत्म। कमिश्नर के हुक्म पर PITB ने आईडीज के गलत इस्तेमाल की रोकथाम बारे मरबूत निजाम
नाफिज कर दिया। अब लॉगिन सिर्फ मुतल्लिका दफ्तर और मुकर्ररा जोग्राफियाई हदूद में इस्तेमाल करेगा। गैर मजाज और दूसरे शहरों में लॉगिन का इस्तेमाल गैर मौसर हो जाएगा। कमिश्नर ने रजिस्ट्री ब्रांच दौरे के दौरान लॉगिन आईडीज के गलत गैर कानूनी इस्तेमाल को पकड़ा था। रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल के पहले ही एंटी करप्शन में ज़ेरे समात है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में रजिस्ट्री ब्रांच करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर रजिस्ट्री ब्रांच की लॉगिन आईडीज का पुराना निज़ाम खत्म कर दिया गया। कमिश्नर के हुक्म पर पीआईटीबी ने आईडीज के गलत इस्तेमाल की रोकथाम बारे मरबूत निज़ाम नाफिज कर दिया। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन का एसी मोहम्मद नवीद हैदर के हमरा ओश शरीफ का दौरा। कमिश्नर मुसर्रत जबीन ने ओश शरीफ में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मुआयना किया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर की मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की और मयार बरकरार रखने की हिदायत। आपको बताएं, गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। बारात के साथ जाने वाली 3 गाड़ियां सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जख्मी। पंजाब हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। बारात विहाड़ी से गढ़ा मोड़ आ रही थी। आपको बताएं, गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। बारात के साथ जाने वाली 3 गाड़ियां सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जख्मी। पंजाब हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। बारात विहाड़ी से गढ़ा मोड़ आ रही थी। आपको अपडेट करें, गढ़ा मोड़ में मुल्तान विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। बारात के साथ जाने वाली 3 गाड़ियां सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरगोदा में मॉल्स और कमर्शियल प्लाजा जात का फायर सेफ्टी ऑडिट जारी। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरगोदा में मॉल्स और कमर्शियल प्लाजा जात का फायर सेफ्टी ऑडिट जारी है। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली का डिप्टी कमिश्नर के हमरा मॉल ऑफ सरगोदा का अचानक दौरा। शॉपिंग मॉल में फायर सेफ्टी आलात, एमरजेंसी एग्जिट्स और फायर अलार्म सिस्टम का तफसीली मुआयना किया। रेस्क्यू 1112 की टीम फायर सेफ्टी ऑडिट के अमल में मुतहरिक इंतजामात पर ब्रीफिंग। कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि फायर सेफ्टी में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर कमर्शियल और अवामी इमारात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। कभी आपको बताएं कि मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डॉक्टर खुरम अफजल चंद की रिहाइशगाह आमद। यूसुफ रजा गिलानी ने बानी फार्मेसी डिपार्टमेंट BZU की वफात पर फातह खानी की। पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली सैयद अली हैदर गिलानी भी हमरा थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने डॉक्टर अफजल चंद की वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने डॉक्टर अफजल चंद की तालीमाती खिदमात को भी सराहा। यूसुफ रजा गिलानी की डॉक्टर अफजल चंद के नाम से सड़क भी मंसूब करने की यकीन दहानी।